So expecting no doubt from anyone. Okay. So I'm starting new chapter, and that is comparing quantities. ठीक है. Okay, sir. So anyone knows about this ratio and percentage? Any basic understanding regarding this? किसी को कुछ पता है तो बताया जरा. सर पहले पढ़ा था सर, पर याद नहीं सर, 6th में पढ़ा था. कुछ भी नहीं याद है. चलो थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्या होता है. Sir, sir, I know that what is ratio. बताओ क्या होता है. Sir, ratio meant to comparison of two or more quantities of same by division. A Exactly. ratio can be, So that's how we are going to do. This chapter is about the comparison, right? So first thing we use for the comparison वो है रेशियो. ठीक है. तो थोड़ा सा समझते हैं कि रेशियो क्या चीज़ है. मैं मान लेता हूँ कि एक आपके पास ऐसे टोकरी है, राइट, बकेट. सो यू हैव दिस वन. और इसमें से कुछ आपने एप्पल रखे हुए हैं. यू हैव सम एप्पल्स ऑन दिस वन, राइट, something like that, and you have some bananas on that one. Okay, कुछ आपके पास इसमें बनाना है. Okay, bananas are not so good, but anyways there are some bananas and some apples. Let's say their apples are, how many apples we are having? Let's say we say that they are 5. We are having 5 apples, and we are having banana 20. So what is the ratio of apple to banana? Sir, 1/4. 1:4. Right. So we write like this: apple ratio banana. Okay. And that is equals to how much? Apple value is 5, and that is value is 20. But ratio में क्या होता है कि that we normally write like this in the division form, right? So we write like this: apple divided by banana, and we write like this: 5 divided by 20. So that comes as 1 divided by 4. So ratio of apple and banana will be how much? 1:4. 1:4. So that's how we write the ratio. कि 1:4 रेशियो है यहाँ पे एप्पल और बनाना का इस टोकरी में. सो दिस इज अबाउट द रेशियो. ठीक है. थोड़ा सा मैं परसेंटेज को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि दैट व्हाट इज परसेंटेज. सो ये तो बात हो जाती है रेशियो की, राइट. देयर इज वन मोर टर्म दैट इज परसेंटेज. परसेंटेज में क्या मतलब क्या होता है? सीधा सीधा मतलब होता है एवरीथिंग टू रिप्रेजेंट इन 100. यानी कि जो कंप्लीट हम मानेंगे दैट व्हाट एवर द कंप्लीट क्वांटिटी यू आर हैविंग दैट इज इक्विवेलेंट टू 100. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या था कि 5 एप्पल थे प्लस जो टोटल 20 बनाना थे. टोटल फ्रूट आपके पास कितने थे? 25. हम इस 25 को इसके 100 को ऐसे 25 को ऐसे ट्रीट करेंगे कि दैट इज दिस इज 100. ठीक है. तो इन फॉर्म ऑफ 100 अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा कि कितने बनाना का, जो एप्पल का, अगर चलो परसेंटेज निकालते हैं हम एप्पल. ठीक है. सो एप्पल परसेंटेज विल बी हाउ मच, ऐसे निकालते हैं कि दैट हाउ मेनी एप्पल्स वी आर हैविंग, दे आर 5, and how many total fruits we are having, they are 25, and multiplied by 100. Okay, so if we solve this one तो कैसे आएगा? 5 5 so 25, and that is coming to 20%. Correct. 20%. So that's Yes, sir. that's how we calculate percentage. And if you talk about the percentage of banana, तो बनाना परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ बनाना कितने थे हमारे पास? 20, राइट. सो 20 divided by total fruits we are having 25. So we can solve this one. 5 4s are 5 5. Oh sorry, I forgot to multiply by 100. And this we can cancel this 5 by this one. So 5 2s are 10,
and now multiply this 4 into 20, that is coming as a 80%. Correct? So we got apple as 20% and banana as 80%. So if you sum both of them percentage, so that comes as 20% plus 80%. ठीक है? So that is 100%. So हम जितने भी फ्रूट्स थे उनको 100 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं कि आउट ऑफ 100 इफ वी टेक दिस 25 एज 100 then there are 20 part of that, because if we represent 25 as 100, so 20th part of that 100 is apple and 80th part of that one is banana. So this is little related to the ratio, but this is the terms of that 1:4, that right. So पार्ट्स की जो बात करते हैं तो हम रेशियो में रिप्रेजेंट करेंगे, और जब 100 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम यूज करेंगे परसेंटेज को. ठीक है? सो वी राइट लाइक दिस दैट आउट इन द बकेट we are having 20% of apple and 80% are the banana. Or we can also say that 1:4 is the ratio of apple to banana. करेक्ट? दोनों से ऑलमोस्ट सेम इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि दैट 1:4. अगर देखो इनको डिवाइड करो परसेंटेज को भी 20% एंड 80%, so that will also give you 1:4. Correct? Any doubt in this? Yes, sir. Your doubt or it's clear? Clear. Clear. Okay, that's good. So let's take a little simple question, but there are a lot of things in that one. So that will give you a clear understanding of this percentage. ठीक है? So question जरा ध्यान से पढ़ना. ये क्या कह रहे हैं? This is saying a picnic is being planned in a school for class 8th. No, it's 7th. Class 7th. Girls are 60% of the total number of the students and are 18 in the number. The picnic site is 55. चलो पहले तो मैं सिर्फ इतने पे ही थोड़ा ध्यान फोकस करता हूँ. The first part, जो first 2 lines लिखी हुई है उस पे. ठीक है? So first thing तो है ये class 7 है, right? This is class 7. In the class 7, girls are how many? Say 60%. say 60 upon 100x. So first count of girls, yeah, in fact the number of girls. Okay, so number of girls are 18 in number. Okay, and another information we are having, the girls are 60% of the total number of students. So Excuse me, sir. yeah, Sir, if we take the total number of student x, so sir, we will get the number of girls 60x upon 100 answer. Then we can put it equal to 18 answer. Then we would get the value of x. exactly. So now we don't know the total number of the students. Okay, so we are not sure about the total number of students, that how many total number of students are there. So for that purpose, what we are going to do, we are going to assume that let total number of students are x. So let me take it. Let total number, yeah, total number of students are total number of students as x. Okay. Now फर्स्ट कुछ इंफॉर्मेशन इससे हम निकाल सकते हैं. क्या क्या निकाल सकते हैं? फर्स्ट थिंग तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इससे निकालने की कोशिश करते हैं. ठीक है? सो अभी जो हमने पढ़ा था उसमें क्या, जैसे एप्पल निकाल रहे थे तो हाउ मेनी एप्पल्स भी कैलकुलेट कर रहे थे कि नंबर ऑफ एप्पल्स अपॉन टोटल फ्रूट्स, राइट? सो सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर. नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकाल सकते हैं? इज इक्वल्स टू, sorry, the number of girls, percentage of girls, not number, this is percentage of girls. Okay, so percentage of girls will be equals to how much? Number of girls divided by total students multiplied by 100. That's how we calculate. पिछली बार भी हमने ऐसे ही किया था, right? Yes,
Yes, sir. So now put percentage of the girls, we know it, that is 60. And the number of girls we also know, that is 18. Total number of students we don't know, so let's take it as x as we have assumed here and multiply it by 100. Correct? So now let's solve the value of x. So x will be coming as 18 divided by 60 into 100. Here one of the 0 will be cancelled out here. 6 3s are 18, and that is 3 multiplied by 10, that comes as 30. So it means that the total number of students in our class 7 is how many? 30. अच्छा, यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज कितने थे? Yes, sir. Yes, Sir, sir. 12. Yes, sir, 30 minus 18. Exactly. So the total number of students minus number of girls. Very simple. Total number of students minus number of girls. So total number हमने भी निकाल लिया है, that is 30, and girls was already given, that is 18. So this comes as 12. So now we are having some of the information. ठीक है, अब हम बात करते हैं और आगे की जो क्वेश्चन कह रहा है. This is so now the next points are that the picnic site is 55 kilometers from the school. So these are going to the picnic, right? A picnic is being planned. So now this picnic site is 55 kilometers from the school, and the transport company is charging at the rate of rupees 10-12 per kilometer. So the total cost of refreshments will be 4280. ठीक है, सो ये चीजें जैसे हमें निकालनी थी, तो क्या क्या हमने निकाल लिया इसमें? तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास. तो फर्स्ट थिंग तो निकाल सकते हैं हम यहीं से. सो टोटल नंबर ऑफ टोटल बॉयज, राइट, सॉरी गर्ल्स बॉय अपॉन बॉयज. सो टोटल Sir, गर्ल्स अपॉन टोटल 3:2. boys. Yeah, so total girls are how many? 18, and boys are 12. So we can cancel it out. That is sorry, 3 is 2. So that is coming 6 3s and 6 2s. So 3:2. So the first part is very much clear that the ratio will be coming as 3:2. 3:2. First part में तो किसी को डाउट नहीं है? No, sir, no doubt. Okay. Let's move to the next question. That is showing the cost per head if 2 teachers are also going with the class. तो चलो मैं जाता हूँ नेक्स्ट पेज में और ये थोड़ा सा चीज़ें नोट कर लेता हूँ. तो फर्स्ट थिंग इज अवर चार्जिंग रेट इज 12 per kilometer, right? So the charging, the distance is 55 kilometers. 55 kilometers, and charges are 12 per head. पर हेड का मतलब पता है ना, एक पर्सन का जो चार्ज है, दैट इज 12. एंड अनदर थिंग, द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट, these are refreshment charges, and total cost of refreshment is how much? कितनी थी, याद है किसी को? नहीं, that was 4280. Excuse me, sir. Yeah. Sir, I think it was 12 kilometer. Rupees 12 per kilometer. Okay, 12 per kilometer. सर वो थोड़ा रिव्यू रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थोड़ा एक बार दिखा दीजिए तो. 12 per kilometer. This one. नो सर, इसके पिछले. इसके पीछे ये. हाँ, यस सर, यस सर. ओके सर, हो गया. So तो अब हमें चलो फोकस करते हैं निकालना क्या गया. ठीक है, सो द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर आल्सो गोइंग विद द क्लास. सो द पर हेड चार्जेस आर, द कंपनी इज चार्जिंग एट द रेट 12 kilometer of rupees 12 per kilometer, एंड द कॉस्ट पर हेड ऑफ द 2 टीचर्स. अच्छा, इसमें रिफ्रेशमेंट चार्जेस की बात नहीं किया है क्या?
60% and the total cost of refreshment will be 4280. Per head refreshment नहीं है क्या? सर हम निकाल तो सकते हैं, हम 18 में प्लस 12 कर दे, उसमें प्लस 2 कर दे, फिर उसको डिवाइड कर दे इससे। ओके, सो चलो हम पहले बात करते हैं इसमें टोटल कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट, वैसे आप पिकनिक ट्रिप में जाते हो तो उसमें क्या क्या एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। सो टोटल जो एक्सपेंस होता है, सो टोटल एक्सपेंस कैन बी, फर्स्ट थिंग इज द ट्रांसपोर्ट चार्जेस, जो आप वहाँ पर जाते हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस प्लस रिफ्रेशमेंट, जितना आपने समोसे खाए वहाँ पे, राइट, या बर्गर खा लिए। सर रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है? रिफ्रेशमेंट ये समोसे खाए आपने, बर्गर खाए वहाँ पे, या मोमोज अच्छे लगे तो आपने मोमोज खा लिए, सो दैट इज रिफ्रेशमेंट। या कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगी आपको, कोल्ड ड्रिंक दे दिया गया, सो इट्स लाइक ऑफ कुछ खाने के लिए मिला आपको, दैट इज रिफ्रेशमेंट, या पीने के लिए, सो कुछ खाना पीना, सो दैट इज द रिफ्रेशमेंट, राइट। आप जाते हो पिकनिक में तो ओके कुछ सर। खाने पीने को मिलता है ना, सो दैट इज द यस सर। रिफ्रेशमेंट। सो ऑब्वियसली दैट इंक्लूड्स द टोटल एक्सपेंस जो होगा, दैट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट प्लस रिफ्रेशमेंट। तो ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है, दैट दे आर सेइंग द दैट इज 12 पर किलोमीटर एंड द टोटल डिस्टेंस इज 55। तो कितना हो जाएगा 55। अच्छा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, या अलग निकाल लेता हूँ मैं। कैसे निकालेंगे, किसी को कोई बताएगा मुझे? अपॉन में करके। ओके चलो सर पहले 52 55 को 12 से डिवाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे लेफ्ट किलोमीटर्स होंगे उनको 12 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे क्वेश्चन से। सो ट्रांसपोर्ट चार्जेस निकल के आएंगे कि पर किलोमीटर, टोटल जो डिस्टेंस है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी है पिकनिक की, 55 किलोमीटर, एंड मल्टीप्लाइड बाय जो पर किलोमीटर का चार्ज है। ऐसे तो निकालेंगे, जैसे कभी ओबर में ओला ट्रेवल किया है, ओला या उबर में, मतलब सर कैब में बुक करे हो ना ट्रेवल कभी, कैब में या यस सर। या ऑटो में क्या होता है, पर किलोमीटर चार्ज यस लगते हैं, सर। कि यानी कि आप 4 किलोमीटर जाते हाँ हो तो 10 रुपए 1 किलोमीटर का है, तो 4 किलोमीटर गए, सो दैट बिकम्स एज 40 रुपीज, ऐसे ही हो जाता है। यस सर। यस सर। सो वही यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 55 किलोमीटर, एंड 1 किलोमीटर का ये ले रहा है 12 रुपए, ठीक है। सो टोटल 55 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 55 मल्टीप्लाइड बाई 12। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। नो सर, नो डाउट। सो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस बिकम्स एज 660। नेक्स्ट थिंग इज अवर रिफ्रेशमेंट। तो रिफ्रेशमेंट क्या होगा कि कुछ दिया गया होगा, मान लेते सर हैं दिया नहीं है। नहीं, तो रिफ्रेशमेंट मान लेता हूँ कि मैं एक, जैसे मान लो आप गए पिकनिक में, राइट, तो हर एक स्टूडेंट को कुछ फिक्स ही होता है कि लाइक वी आर गिविंग 2 समोसा एंड 1 फ्रूटी, राइट। यस सर। सो अब ये 2 समोसा और 1 फ्रूटी अगर हम एक बॉक्स में रख के देंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी हैविंग सम फिक्स्ड कॉस्ट, कितनी होगी लगभग, तो 2 समोसा मान लेते हैं, एक समोसा हाँ सर। 10 रुपए का आता 10। है, एक समोसा 10 रुपए का आता है, तो दैट इज 20, एंड 10 रुपीज प्लस एक फ्रूटी, सो दैट इज 30 रुपीज। So that is one box we are giving to every person. So obviously this per person cost will be, मैं मान लेता हूँ कि that is a y rupees, that we have y rupees for the refreshment per person. ये ध्यान रखना है कि this is the per person right now. सर एक्स भी ले सकते हैं ना? बिल्कुल कुछ भी ले सकते हो पर पर्सन। एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं लिया बिकॉज पिछली बार मैंने एक्स एज्यूम कर लिया था टोटल स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे वाई मान लिया। सो दिस इज रिफ्रेशमेंट पर पर्सन। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 30 30 निकाले थे अभी हमने, राइट, वी हैव कैलकुलेटेड द यस टोटल स्टूडेंट्स एज 30। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि दे हैव इंक्लूडेड, Sir, there are 2 teachers right, also. so they have what they have said that the 2 teachers are also going in the क्लास। तो ऑब्वियसली अब ऐसा तो नहीं करेंगे कि सारे बच्चे खा लें और टीचर्स भूखे रहें, सो वी विल गिव द रिफ्रेशमेंट टू द टीचर्स एज वेल। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर एडिंग 30 प्लस 2 टीचर्स, एंड for this we are giving the y rupees per person refreshment. So this will be our total cost, 660 plus 32y, and the total expense was given as how much, the total cost of refreshment
will be 4280. This is given in the question. Excuse me, sir. Go ahead. Excuse me, sir. Yeah, go ahead. Yes, sir. But I have taken y on this, sir. We could divide the 32 by the total cost of the refreshment. Yeah, that's why, because we have the transport charges included in that one, right? Because of that. Sir, but we only know for the total cost of the refreshments only. Yes, that's also true. So we have to divide directly, right? We don't have to add the total expense on that one. Right. Yeah, you are very fine, right? This is the total cost of refreshment only. So we don't have to subtract this one. So that's, you're quite right. We will go this in the next section. Right now, we will just include for the refreshment. Let me erase it. So this will be the total cost. But अभी जो हमें पास given है, that is the total refreshment cost, right? So let me change the color for this one. So total refreshment will be, because we are talking about the refreshment ही given है हमें. So total refreshment will सर be, हमको एक डाउट है बिल्कुल. सर, वो 30 + 2 है, तो मतलब कि उसमें 2 रुपए और कहाँ से आ गए? दो टीचर टीचर्स, कैसे आ गए? राइट. वी सर हैव जानता हूँ टीचर है, बट 2 रुपए उसमें है. 2 रुपए नहीं है. These are the total counts. 30 students and 2 teachers. This is not rupees. This is our refreshment charges. Why? This is in the अच्छा, ये rupees. सब. ठीक है. So total refreshment is given as 4280. So we'll take it 4280. That is equals to 32y. So y becomes as 4280 divided by 32. कितना आएगा ये? और 8 से डिवाइड कर देंगे पहले. 8 से कर देते हैं. 8 5 सा 40 and 8 3 सा 24 and 8 5 सा. So that is coming as 535 divided by 4. और 5 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? सर पॉइंट में आएगा. वही मुझे भी लग रहा है. Yes, sir. 133.7 करके आ रहा है. So let me take it as it is. ठीक है, इसको मैं अभी ऐसे ही रखे रहता हूँ. 5 3 5. इसको डिवाइड करने का मेरा मूड नहीं है. So let's take it this one. ठीक है. तो हमारा पिछला जो क्वेश्चन था, द कॉस्ट पर हेड इफ द 2 टीचर्स आर गोइंग विद द क्लास. सो दिस विल, ओके. सो नहीं, अभी तो हमारे पास वैसे इसको निकालने की जरूरत नहीं थी हमें. अननेसेसरी वी हैव इन कैलकुलेटेड दिस वन. ठीक है. तो हमारा पास टोटल रिफ्रेशमेंट गिवन थी. हम यहाँ से इस पे ही फोकस करते हैं. वी डोंट हैव टू, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, पूछा नहीं है हमने, फालतू ही निकाला है इसको, राइट? वी डोंट नीड दिस वन. हम फोकस करते हैं टोटल एक्सपेंस पे वंस अगेन. ठीक है. सो लेट्स गो टू द टोटल एक्सपेंस. Excuse me, sir. या सर इसमें तो हमें बस 660 और प्लस जो हमारा टोटल एक्सपेंस है वही तो करना है. राइट. सो 55 into 12 plus refreshment charges. Refreshment is 4280. So we'll simply do this one. 660 plus refreshment charges is 4280. So the total expense will be coming as, ऐड करेंगे तो कितना आएगा? कोई ऐड करेगा जरा? इतना ही आ रहा है? फोर 4940. यस सर. अच्छा, एक चीज वही मेरा आ रहा है. मैं और सोच रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट्स जाएंगे तो वापस भी तो आएंगे. हाँ सर. तो व्हाई वी डोंट इंक्लूड 55 को डबल कर दे, राइट? वी शुड नॉट टेक ओनली वन साइड. बच्चे जाएंगे पिकनिक से तो वापस भी तो आएंगे. तो दिस इज ओनली वन साइड 55, राइट? सर पर हमने वो मेंशन थोड़ी कर रखा कि क्वेश्चन में कि वो अभी की वो वापस भी आएंगे. हमें तो यस सर, ओनली गोइंग कर दिया है. नहीं, the picnic site is 55 kilometers from the school, right? That's what, let me clear it because there is a lot of hopscotch in this one.
राइट। अभी तो क्वेश्चंस में आपको सिर्फ यही दिया है ना कि वो कितनी दूर है, उसमें तो ऐसा नहीं कहा कि नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट। एंड दे हैव गिवन द पर किलोमीटर चार्जेस, तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट लीव द स्टूडेंट्स, हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि वहाँ पे छोड़ दें उसको। करोगे क्या आप नो सर। भाई? हाँ हाँ। अगर किसी को इसमें डाउट है कि नहीं हमें फिर 15 करना चाहिए, मुझे तो ठीक नहीं लगता। लॉजिकली सोचो तो इंक्लूड करना चाहिए मुझे 55 किलोमीटर्स जाने के और 55 किलोमीटर्स वापस आने के। सर पर हम्म। अगर हमें 110 मेंशन ही नहीं करा था तो सर हम क्यों कर रहे हैं? नहीं, बिकॉज मेंशन करने की जरूरत तो मुझे नहीं लगता कि उनको है। अगर हम पूरे द कॉस्ट पर हेड इफ द टीचर्स आर गोइंग विद द क्लास, मतलब कि ये ट्रिप अगर जाएंगे तो वापस भी आएंगे, वी कैन नॉट लीव द ओनली वन साइडेड एक्सपेंस, तो नहीं इंक्लूड कर सकते इसमें। तो उसने कॉमिंग लिखता और गोइंग लिखता तब करते ना। हाँ, अगर तो एक्सप्लिसिटली उन्होंने लिखा होता कि सिर्फ वन साइड का ही ट्रिप करो तो ही हम रखते हैं। सो फॉर दिस वी हैव टू इंक्लूड 2 टाइम्स ऑफ दिस वन, सो हियर आल्सो 260 we cancelled it out. सर पर उसमें हमें गोइंग दे रखा है तो फिर इसका मतलब तो हाँ सर वही आ ही रहा ना। मतलब गोइंग मतलब समझा नहीं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मतलब कि ओनली जा रहे हैं हम लोग, आने का तो बोला ही नहीं। कहाँ पे लिखा? सर द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर आल्सो गोइंग विद द नहीं, क्लास। वो तो इसलिए बता रहे हैं कि ट्रिप में 2 टीचर्स इंक्लूड है, इसका मतलब ये नहीं कि जाके वापस नहीं आएंगे वो। सर तो ये भी तो है ना कि हमें सिर्फ जाने का ही पूछा, अगर हमें आने का भी पूछते फिर तो पूछते द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर आल्सो कमिंग विद द स्टूडेंट्स होता ना। हाँ सर तो ठीक है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है मल्टीप्लाई करना, बिकॉज आई डोंट वांट टू लीव ऑल द गाइस ओवर देयर। अच्छा, और किसी को क्या लग रहा है कि हमें 2 मल्टीप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एनीवन एल्स? नो सर नहीं करना सर चाहिए। मल्टीप्लाई करना चाहिए। सर इसके लिए तो ऑप्शन ही चाहिए होता है ऐसे क्वेश्चन के लिए तो। हाँ, मतलब ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो वैसे अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों तरीके से करना चाहिए फिर, मुझे लगता है, बिकॉज फिर तो वो मूड पे है ना चेक करने वाले पे, वो तो कुछ भी कर देगा इन दैट केस। बट मेरे हिसाब से तो अच्छा, और कोई क्या कह रहा है, मतलब हमें करना चाहिए या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं इसमें। एनीवन एल्स? करना चाहिए सर। करना चाहिए, वी हैव टू करना चाहिए। एनीवन एल्स? करना चाहिए सर। वी गॉट 3 guys. एनीवन एल्स? Oh, it's always democracy wins. So 200 2, and this becomes as 1320, right? And plus 4280. If we sum both of them, this becomes as 0 8203256 1 carry and 415। मुझे ऐसा लग रहा है, कि वो इंक्लूड करके रखा था तभी ये 5600 ना बहुत अच्छी डिजिट आ रही है। अदरवाइज पिछले वाले में थोड़ा सा ऑड सी डिजिट आ रही थी, इसका मतलब कि जो क्वेश्चन बनाया है तो वो ये सोच के बनाया है कि दैट वी शुड ऐड बोथ द साइड्स, सो इट लुक्स लाइक दैट। ठीक है। और तो दिस इज अ टोटल एक्सपेंस, और टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल कितने हो गए पर्सन? टोटल पर्सन वी आर हैविंग 32 because we cannot 32, so we can divide, so cost per person will be how much? Cost per person डिवाइड कर देंगे। we will be having total cost, that is 5600 divided by total number of people, 32, sorry, 32. So if we cancel it by 8, 700 divided by 4, and if we further 175 आ जाएगा। 175, 4 1 का 4, पूरे का डिवाइड करने पर 175, so that is the हाँ। cost per person, 175 rupees per person। किसी को डाउट है इसमें? नो सर नो डाउट। नो सर। Okay, let's switch to third part. The third part was saying if the first stop is at a place 22 kilometers from सर the थोड़ा school। ऐसे करिए ना, जैसे कि फर्स्ट पार्ट लिख कर वो सॉल्यूशन करिए, इसलिए हम बना भी रहे हैं।
मतलब कि फर्स्ट लिख कर वैसे। समझा नहीं मैं, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। So if the first stop is at place 22 kilometer from the school, what percent of the total distance of 55 kilometer is this? What percent of the distance is left to be covered? So this is quite simple. ठीक है, तो उसको जाते हैं हम थर्ड पेज में। ये कह रहे हैं कि that was the distance of total 55 kilometers. Okay, this is our total 55 kilometers. 55 किलोमीटर्स में क्या हुआ है कि 22 किलोमीटर्स पे फर्स्ट स्टॉप ले लिया है, थोड़ा सा अपना रेस्ट लिया, घूमे टहरे। सो दैट इज हैपनिंग एट द 22 किलोमीटर्स, सारे बच्चे यहाँ पे रुक गए। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज आस्किंग, व्हाट इज दिस परसेंटेज ऑफ दिस 22 किलोमीटर ऑफ द टोटल ट्रिप। तो अच्छा, बचेगी कितनी, अगर यहाँ से 22 हो गई तो बचेगी कितनी है? 23 kilometers. That's right. So now we have to take that how much we have covered. Covered percentage, covered distance percentage, covered distance. So this is the covered distance, कितनी cover कर ली हमने? 22 divided by the total distance, that is the 55, and multiplied by 100 because we are 100. calculating the percentage. Excuse me, sir. Yeah. Sir, I think we should multiply. Sir, in the above question, sir, you have written that some part is 22 and the rest is 23. Sir, it should be 33. 33? Oh. Oh, very good. So that should be 33, right? So now we have to take the remaining distance. So percentage of the remaining distance. Sir, 60%. So that's the remaining distance कितनी है कोई? 33 as we just calculated. 33 पता नहीं कैसे आ रही है? That is a total distance minus what we have covered. So that is coming as 33, right? So the percentage of remaining distance 33 divided by 55, and that is coming as 3 by 5. Oh, 100 I have forgot again, into 100, and this we can 5 2s are 10, 20 3s are 60. So that is the 60. Something is wrong. Yes, sir. Sir, वरना फिर ये 100 आता ना. Exactly. There is something wrong. Okay. सर पहले Okay, वाला right. 40% है. Right. So this should be 2 by 5. So that should be 40%. So that's 40 plus 60 is how much? 100%. So that's how it happens. कि total का हम जो होना चाहिए sum सारी चीजों का, that should be 100%. So this question is clear, right? Yes, sir. Sir. Yes, sir. और हम x की जगह उसको 1 यूनिट भी ले लेते हैं, जैसे कि हमको कहीं दे रखा है 3% there are 120%, तो हमें कहीं दे रखा हो कि 120 इक्वल टू 60 अपॉन 100x, तो हमें इसको सॉल्व करना हो तो हम कभी कभी x को एक्सक्लूड करके उसको 1 यूनिट भी मान लेता है। राइट, वो पढ़ेंगे आगे भी आएगा, ठीक है। we will do like that in some cases. So till now we have covered exercise 8.1 और 8.2 की जो थोड़े से प्रैक्टिस मतलब के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से लेंदी हैं, तो आई एम कवरिंग सम ऑफ द पार्ट राइट नाउ, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट हम करेंगे और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो थोड़ा सा देख लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के बाद। टिल नाउ विद द नॉलेज अभी तक जो हमने कवर करा है उसके बेस से आप एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, और अभी हम थोड़ा सा 8.2 का भी पढ़ लेंगे, तो यू कैन ट्राई सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ 8.2 जो आप कर पाओगे, ठीक है। तो जस्ट ट्राई। तो ये तो थोड़ा सा पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस में से है। हाँ, या वी विल जस्ट लर्न एवरीथिंग। सो अभी हम निकालने वाले हैं कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द परसेंटेज। तो ये क्या होता है कि जैसे आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होगे, राइट, वी हैव दैट 25 ऑफ ऑन द मार्क्ड प्राइस, जैसे या फिर 10% हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, सच टाइप ऑफ आप सुनते रहते हो, राइट, कि 10% इंक्रीज हो गया पेट्रोल में। या नहीं सुना तो पॉपुलेशन का जरूर पढ़ा होगा कि दैट आवर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड बाय 10% और 20%,
या 10-20% ज़्यादा हो गया, 3 to 4%. सो समथिंग लाइक दैट हम ये पढ़ते रहते हैं कि दैट दिस इज गोइंग हाई और दिस इज गोइंग लो. सो ये चीज़ें कैसे निकालते हैं उनको जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. तो मैं एक बार इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ दैट दिस इज द पेट्रोल. तो मान लेता हूँ कि जो करंट रेट है पेट्रोल का, Sir, 100 rupees. चलो मैं 200 मान लेता हूँ. सो लेट्स से दैट द करंट रेट इज ₹200. ओके, current rupees rate. And now what is happening? There is 10% hike in the petrol. 10% hike. तो hike कितनी हो गई? Hike is increase, right? Increase in the price. Sir, 210 upon 100 multiply So- the total price. So that we will calculate by how much? 10% of जो current value है. तो 10% of current price. ये ध्यान रखना हमेशा. 10% of current price. So 10% ऑफ 2%, यानी कि 200. चलो पहले इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ. जो रेट है पहले राइट नाउ उसको मैं पहले लिख लेता हूँ थोड़ा समझने के लिए आसानी रहेगी. बिकॉज सारा जो कैलकुलेशन होगी वो करंट रेट पे ही करेंगे बिकॉज हम उसी पे सारा गेम खेलेंगे, राइट. सो 200 इज राइट नाउ और इसका 10% हमने बढ़ा दिया है. हाउ मच वी हैव हाइक? दैट इज 10%. तो परसेंटेज ऊपर एंड डिवाइड बाई 100. जब भी परसेंट बहुत होती है कुछ भी लिखा हो यानी कि वी हैव टू डिवाइड बाय 100. जो वैल्यू हो जितना परसेंटेज हो डिवाइड बाय 100. सो दिस ओके सर. 2 0 get cancelled and 10 multiplied by 2 that is 20. So that is the increase in price. ये सिर्फ इंक्रीज है कि कितना बढ़ा, ठीक है. सो 200 पहले था और 20 रुपए बढ़ा दिए गए उसमें. सो नाउ वी हैव द न्यू रेट और इनफैक्ट न्यू प्राइस दैट विल बी इक्वल्स टू करंट जो पहले था एंड प्लस हाइक दैट इज इंक्रीज यानी कि जो पड़ गया. सो दैट विल बी 200 प्लस 20. सो आवर न्यू रेट विल बी 220 रुपीज पर लीटर. ठीक है, किसी को डाउट है इसमें कुछ भी? यस सर. नो सर. No. Okay, so No, sir. let's take one example of this one. The price of a scooter was rupees 34,000 last year. It has increased by 20% this year. What is the price now? कर सकते हैं इसको? Just यस सर कर सकते हैं. just Yes, sir. quickly solve it in your notebook and give me the answer. ओके सर. Excuse me, sir. Mhm. Sir, the answer is coming to be, sir, 40,800. 40,800. Let's see. Yes, sir, 40,800. जिसको नहीं आ रहा हो they can look at my screen. तो करंट प्राइस इसका है 34,000 एंड जो परसेंटेज है दैट इज 20/100. सो दिस कैन बी 5 2/5. सर मेरा आंसर आ रहा है 6800. 6800. ये तो बहुत कम है. ये इंक्रीमेंट होगा, तुमको उसमें ऐड भी करना होगा. हाँ सर ओनली ये किया हूँ. हाँ तो ऐड भी करो उसमें. सो दैट इज 34 मैथ के हमसे 6800. So this is the increase in the price. ठीक है.
So now what is the new price? New price will be the last year price plus the Plus the increment. increase in the price. So that is going to be 34,000 plus 6800. That is going to happen 00804. ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? No, sir. Good. No, sir, no doubt. Nice. Excuse me, sir. Yeah. Sir, in this question, sir, we can also take if we first multiply and then plus, sir, instead of adding them, sir, we could take it as we could add directly 100 to 20 and then multiply it. For example, that 34,000 multiply 120 upon 100. we will learn once we get smarter. We will do it. वो भी कर सकते हैं, ठीक है? But this is Yes, sir. step by step method for the understanding. We can do that as well. Yes, sir. So an item marked at 840 is sold for rupees 714. What is the discount percentage? ठीक है, तो यानी कि टोटल जो प्राइस है उसका, नहीं जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा होता है कि नो दिस इज 840 रुपीज, और फिर शॉप वाला कहता है कि नहीं यू गेट सम परसेंटेज डिस्काउंट एंड आफ्टर दैट यू विल गेट दिस मच ऑफ अमाउंट. सो हुआ क्या है कि 840 उसका लिखा हुआ है एमआरपी जो प्रिंटेड है उसमें. Excuse me, sir. या Sir, for this, sir, we have to first subtract the marked item. And we will do it. from how much is it decrease? So we have to minus them and then keep it as a numerator and then divide the marked price by it and then multipy it by. we will do it. We just hold on. We will do it. So 840 and the sold price is 704, and now you got that piece as rupees 126 discount 714, right? So the printed rate is 840, and what you purchased, you paid only for the 714. हमें निकालना है कि that what is the discount and discount percentage. So first focus will be our discount, that how much discount we got. So discount is 126. very simple. That discount will be the what is our MRP, right? What is the printed on that one, and what we purchase. So that MRP into the billing price, right? जितने आपको पैसे बिल किए उसने. So MRP was printed over there, that was 840, and you billed it at 714. इसका मतलब कि आपको जो डिस्काउंट मिला है, that you have got it as how much? 126 rupees. So now you have to calculate the percentage of this 126. So quite percentage. So discount percentage will be equals to discount divided by the कौन सा प्राइस होगा, बिलिंग प्राइस या एमआरपी? Billing MRP. We always take the base वैल्यू जो होती है, बेस वैल्यू, बाद वाली वैल्यू नहीं, पहले वाली वैल्यू जिस पे हम डिस्काउंट है या कुछ भी है जो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो हम किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? 840 पे, ना कि 704 पे. ये तो बाद में आया है. You have after you have calculated the discount, then you get this value 704. लेकिन ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? ओरिजिनल was this one 81840. So we will take the MRP. So discount you got as 126 divided by 840 into 100. 10 gets cancelled over here, and किससे cancel हो जाएगा? Let's try with the 2. 2 से I think नहीं 3 84 into how much? नहीं, ये तो 42 into 10. That is coming on decimal. Anyone calculated? किसने आंसर नहीं बताया इसका? I am waiting for the answer of this question.
Anyone has calculated this or not? सर वेट में बना रहा हूँ. नहीं निकाला? Sir, 15. Someone got 15. यस सर 15 होगा. So we got it as 15%. 15%. ठीक है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है? नो सर नो डाउट. Okay, that's quite good. And now let's take one more example. The list price of a frog is rupees 220. Okay, and the discount of 20% is announced on sales. What is the amount of discount on it and its sale price? So this is, I think, quite similar to previous one, right? 220 था, उसमें यस percentage. सर वन दूसरा एग्जांपल में ये क्वेश्चन था. Right, similar to the previous one, I think. Can anyone just quickly solve it and let me then give me the answer? ओके सर. And now Nimaya will tell the answer. Sir, 44. Oh, someone tell already. $44. This is discount on its sale price. Okay, so this is 44 rupees. Let's see from others what they get it. Okay, let me also solve it to save the time. So this is our list price. List price is like MRP, what is printed, right? So list price is 220 and discount, we should say that percentage discount. 265 मेरा आ रहा है पहले. 265 265 265 265 तो नहीं आना चाहिए भाई. सब्सट्रैक्ट करना है, क्या कर रहे हो तुमने? माइनस करना है, इसमें डिस्काउंट करना है. तुमने तो रेट बढ़ा दिए इसके. बढ़ाना नहीं है, घटाने हैं रेट, डिस्काउंट करना है. So the discount will be how much? 220 रेट था और इसमें आपका 20% आपने इसका निकाला. So that is coming as 2 zeros gets cancelled, quite simple, and 44 is the discount. ये तो quite simple है. और अब निकालना है हमें कि इट्स सेल प्राइस क्या होगा. तो सेल प्राइस विल बी द, कि जो लिस्ट प्राइस था इसका और माइनस द डिस्काउंट. सो सेल प्राइस इज list price was 220 and minus our discount. तो अब कल से शॉप में जाओगे कुछ खरीदने तो निकाल लोगे ना कि अगर 10% डिस्काउंट है तो कितने का मिलेगा. यस सर. How much? अभी तो लॉकडाउन है. Okay, so we get the answer as 176. यस सर मेरा भी आ गया. Okay, that's quite good. So okay, till now it's okay. From the next class we will cover सर थोड़ा ये दिखा दीजिए. solution. हाँ. Okay, ओके सर हो गया. that's quite good. अभी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ. Oh, awesome. वैसे कॉपी में लिखना सीखो, कॉपी में लिखने से थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाता है. हाँ सर अभी Okay. थोड़ा लिख ले रहा हूँ. ठीक, गुड, बल्कि स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ उसके बाद लिखूंगा. नाइस. तो अभी तक जो हमने आज पढ़ा इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं था? नो सर नो डाउट. Anyone else?
Having doubt? No. Okay. So till that जो हमने अभी कवर किया है, आप जो एक्सरसाइज है वो होमवर्क में कर सकते हैं 8.1 एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ 8.2 बिकॉज 8.2 थोड़े से कर सकते हो सारे, एक बार देख लेना कौन कौन से ट्राई कर सकते हैं. सो जस्ट ट्राई देम, और कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कवर प्रॉफिट एंड लॉस एंड लिटिल मोर. Okay, and after that we will be completing our exercise 8.2. After that we will go for the, I think, topic is compound interest, if anyone knows it. Sir, Yep. sir, have you sent this PDF of this chapter? Oh, not yet. I will just quickly send it. सर पीपीटी भेज सकते हैं जो बनाए हैं आप? ये वाली हाँ सर, इसमें तो कुछ लिखा नहीं है, मतलब मतलब कि सॉल्यूशन है ना. अच्छा जो मैंने लिखा है, ठीक है भेज देता हूँ मैं. हाँ वो भी भेज सकता हूँ. आई विल डू इट, या मैं सारे कर लूँ उसके बाद भेज दूँ, बिकॉज आई विल कंटिन्यू. ओके सर, उसके बाद ही भेज पूरे दीजिएगा. चैप्टर खत्म कर लेते हैं पूरा ये वाला, जब सारा सर कुछ. उसके पहले जो जो हुआ है उसका पीपीटी है तो भेज दीजिए ना. हाँ वो भेज देता हूँ, ठीक है. हाँ सर भेज दीजिए. ठीक है. यस सर. ठीक है सर, बाय. ओके बाय. Thank you, sir. Good night, ओके sir. गुड नाइट. हाँ सर, Thank गुड Bye, नाइट. sir. Thank you, sir. बाय. थैंक यस यू सर, टू. थैंक यू सर. थैंक यू टू. Thank you, sir. थैंक यू. Thank you, sir. Good night. गुड नाइट. आई हैव जस्ट सेंड द पीडीएफ. यस सर, भेज दीजिए. पहुंच गई होगी शायद अब. देखता हूँ सर.